आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ऑनेस्टली मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए, क्योंकि काफी दिन से मैं सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देख रही थी, लेकिन अगर हम अंदर की बात करें कि लाइक जो एक विजिट करना होता प्रॉपर, वो ऐसी वीडियो नहीं मिल रही थी। एंड आई एम श्योर कि आज हम लोगों को वो देखने का मौका मिलेगा। कौन सी वीडियो बताएंगे मौज़? टाइटल है इनसाइड द न्यूली ओपन नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर इन मुंबई फीचर्स काम्या जानी करली टेल्स। मतलब कि जो नीता मुकेश अंबानी है, उनका ये कल्चरल सेंटर है भाई, बहुत ही रंगारंग जो वीडियोस में मैंने अभी तक देखा है। एनीवे अभी देखते हैं वीडियो के कैसा है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यही है ना वो जगह जो हम इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, where all the biggest celebrities of town are here, be it Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Tom Holland, Gigi Hadid, you name it, and they were here. वैसे उन सब ने तो आपको ये जगह सिर्फ बाहर से दिखाई, but हम कर्ली टेल्स वाले आपको ये जगह अंदर से दिखाएंगे। The Neeta Mukesh Ambani Cultural Center is the newest landmark of Mumbai, and today I am going to take you on a tour. Come here, ma'am. Right profile. Come here. One more. Come on, you guys. यार स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत लगा है इसे भी। ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत है। ये एक और चीज बड़ी, ये मैं बोली थी, ये एक म्यूजियम टाइप बनाया है। ये तुम्हें पता है कौन सी ड्रेस थी? कौन सी? ये जो करीना कपूर ने पहनी थी। Wow. The opening of the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center took the internet by storm. It is the first of its kind cultural center that showcases India's finest offerings in music, theatre, fine arts and crafts. The center marks another definitive step in strengthening India's cultural infrastructure and bringing to fruition the best of India and the world in the sphere of arts. To be honest, this truly is a tribute to India's glorious legacy, traditions and heritage. बहुत खूबसूरत ड्रेस है। The Neeta Mukesh Ambani Cultural Center, जिसे NMACC भी कहा जाता है, is the brainchild of, you guessed it right, नीता अंबानी। 6 साल की उम्र से भरतनाट्यम करती आ रही नीता जी का एक ही सपना था, to establish a place that represents India's rich history, culture, heritage and art. Located in Bandra Kurla complex at Geo World Center, this marvelous cultural center includes 3 performing art spaces, an art house and an ongoing exhibition called India in Fashion. यहाँ हर रोज performances और shows होते हैं, and much like cinema halls, the shows, performances and exhibitions here keep changing, giving a chance to known as well as budding talent in the space of art, fashion and culture. So chalo, let me first show you the performing art spaces. इसमें तो मेरे ख्याल में उन्होंने खुद भी परफॉर्म किया ना नीता जी ने। ये थोड़ा ना ओवरऑल टाइप लग रहा है। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। Wow, there's nothing like this I have seen before, especially in India. मतलब बिल्कुल Hollywood vibes दे रहा है ये. This is the Grand Theatre and I'm truly enamored by the grandeur of it. It can easily accommodate about 2,000 people. Oh. Offers 18 diamond boxes, As giving you you a decide. total VIP experience. And to add to that, अगर आप यहाँ पर आओ, don't forget to check out the LED ceiling. It literally has 8,400 Swarovski crystals, completely customizable, can design graphics, Wow. and can also add a unique and a multi-dimensional experience. Meticulously designed for immersive experiences, every performance at the Grand Theatre is magical, thanks to a combination of a world-class integrated Dolby Atmos surround sound system and virtual acoustic system. I have to say that this is one of the most technologically advanced theatres in India.
बिल्कुल ओपेरा वाली फीलिंग देगा ये आपको। यहाँ अब से लेकर जून तक हर शाम द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल शो होगा, जो इनॉग्रेशन में भी हुआ था। एंड प्रीटी सून यू आर गोइंग टू सी इंटरनेशनल लेवल शोज हैपनिंग राइट हियर। Tickets are priced nominally starting at 400 rupees, and for the VIP experience in the Diamond Box that comes with a private butler, seating space and personal toilet, you may have to pay 15,000 rupees. 4,000 कहा था। To be honest, looking at all of this, हाँ I can't जी। wait to actually watch a show in the Grand Theatre. But तब मैं shoot और आपके साथ share नहीं कर पाऊंगी ना। बहुत खूबसूरत सीरीज है। बहुत। 3D टाइप। हाँ। Performing on this stage would be any artist's dream. But other than this, there are 2 more performing art spaces. Let me first take you to the Cube. With a movable stage and seating, the 125-seater Cube encourages and promotes emerging Indian artists from new and experimental theatre, spoken word, stand-up comedy and music. There's also a studio theatre, an intimate space for cutting-edge performances, जो काफी technologically advanced है। So ये है Studio Theatre. It's a 250-seater space which offers telescopic seating system. What does that mean? Well, इसका मतलब ये है कि जो ये आप सारी कुर्सियाँ यहाँ पर देख पा रहे हैं, all of this can be retracted towards the wall, और ये बिल्कुल एक open slate बन जाएगा for all the artists to perform in. और यहाँ का जो sound system है as well as the production capabilities are definitely going to make this a preferred venue for all the artists. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है यहाँ का आर्ट हाउस, जो स्प्रेड किया गया है ओवर 4 फ्लोर्स, 16,000 स्क्वायर फीट। और करंटली यहाँ पर एक जो एग्जीबिशन हो रहा है जिसका नाम है संगम कॉन्फ्लुएंस, जहाँ 5 इंडियन और 5 इंटरनेशनल आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली दिस होल स्पेस हैज़ बीन डिज़ाइन एज पर द ग्लोबल म्यूजियम स्टैंडर्ड्स, और हर 2 या 3 महीनों में यहाँ पर एग्जीबिशन बदले जाएंगे, जहाँ नए आर्टिस्ट को मौका मिलेगा टू एग्जिबिट देयर आर्ट वर्क। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ना। आई पर्टिकुलरली लव दिस वन ऑफ कृष्णा एंड राधा विच इज बाय रकीब शॉ, एंड इंटरेस्टिंगली इट्स अ पार्ट ऑफ द अंबानी कलेक्शन टू। बहुत ही कलरफुल थी। ये हार्ट में Wow, I particularly love this one. Any guesses ये क्या है? Well, this is a whale's heart. Artist Bharti Kher wanted to imagine कि किस तरह से a heart of a whale would be like, and that's when she created this. और इस fiber glass पर बिंदी जो हम सर पर लगाते हैं वो लगाया गया है। वाह। So up मैं आई हूँ at one of the most exciting spaces here, which is India in fashion. This is a visual treat for anyone who loves fashion and art. यहाँ आपको दिखेगा the influence of India in the work of global designers और high-end luxury brands such as Chanel, Christian Dior और YSL. ये तीनों ही brands का अपना एक सेक्शन है, and in addition to that हम सब जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अपनी आइकॉनिक आउटफिट्स में देखते हैं, you're gonna get a glimpse of this iconic Bollywood outfits right here at India in Fashion. Here you can see the finest work by Indian designers such as Rahul Mishra, Sabyasachi, Manish Malhotra and more. यहाँ की entry is nominally priced at only 199 rupees, and you can get access to both India in fashion as well as the art house. Best part, fashion and art students के लिए यहाँ कोई entry fee नहीं है। क्योंकि देखो बहुत इकोनॉमिकल है। Wow, do these outfits ring a bell? अच्छा, I'm sure it does. I mean, that outfit was worn by Kajol in मेहंदी लगा के रखना. Kareena Kapoor wearing that outfit in Bolo Churiya, and how can you forget Priyanka Chopra in her Desi girl attire? मुझे ये भी साड़ी पसंद है। Well, you see this outfit worn by Michelle Obama, designed by Naeem Khan. Well, he's recreated the same for the India in Fashion exhibition. Nice. ये नहीं मुझे पता था। मुझे भी नहीं था पता। और कितना अच्छा ग्लास। I am enamored by what I'm seeing right now. ये वाली
well. So this is Yes. Isha Ambani's wedding outfit, the only lehenga ever to be made by Valentino. मुझे नहीं पता Valentino। नहीं, ये सिर्फ ओनली लहंगा, कोई डिजाइनर होंगे ना, उनमें सिर्फ ये ओनली लहंगा बनाया This होगा has अपने been career a में। very, very interesting journey. I have to say that the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center is an ode to our nation, a commitment to preserve and protect Indian art and culture. तो आप भी यहाँ आइए, take a tour. Remember to wear comfortable shoes because this place is huge. But by the end of it, you're surely going to feel proud of India's rich art and culture. I hope you enjoyed watching this video. Until next time, it's me Kamya Jani signing off. भाई इस पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जितने भी सेक्शंस बनाए गए हैं उसके अंदर सारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ख़ास तौर पर जो मैंने बात की थी ओपेरा हाउस वाली जो वाइब्स दे रहा था वो तो वाकई बहुत एक शानदार जगह थी ना। लेकिन उसके अलावा अगर जो है ना जो डिज़ाइनर्स वाली बात करें वो भी जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। वेल मैं ये बात बोलूँगी कि जिस तरीके से पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर हम लोग इसका एक तूफान देख रहे थे, मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल एक्टर्स जो थे वो भी आए थे। इवन के आप जो स्पाइडरमैन एग्जैक्टली स्पाइडरमैन चुराया मेरे दिल का चैन। नहीं, मेरे दिल का जानी से जुड़ाया, लेकिन स्पाइडरमैन को भी हम लोगों ने देखा। अच्छा मुझे एक चीज नहीं पता कि लाइक जीजी हदीद है या गिगी है, मतलब मुझे तो लगता था गिगी है वो जो उनका नाम है। भाई मैं गलत भी हो सकती हूँ ना, तो मैं भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं भी गलत हो गया। अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नहीं पता होता। बड़ी फेमस मॉडल भी हैं वो, क्योंकि जो काम्या जी हैं उन्होंने जीजी बोला तो मुझे लगा कि पता नहीं अब जीजी हैं या गीगी हैं क्या है, वो आप ज़रूर बता दीजिएगा। और उसके अलावा अगर हम लोग साउंड सिस्टम की बात करें थिएटर की और थिएटर की बात करें, आई मीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। पहले तो भाई सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें बाहर से ही शुरू कर देना चाहिए कि जो उसका स्ट्रक्चर देखने में आपको लगता है इंतहाई खूबसूरत। यानी कि कुछ आर्किटेक्ट इस तरह के होते हैं जो कि आप कह लो कि आपको वाकई में बहुत ह्यूज लगते हैं, और ये इसी तरह का बनाया गया, चाहे आप इसको बाहर से देखो या अंदर से देखो आपको एक बहुत ह्यूज लुक आती है। यार उसके साथ साथ आप जो है ना एक कलर कम्बिनेशन जो इस्तेमाल किया गया, आपको जो फ्रंट पर नजर आता है जो शीशे हैं, फिर उसके आगे एक जो है वो आई थिंक गोल्डन आप उसे कहेंगे या पित्तल के रंग का जो एक पूरा स्ट्रक्चर वो दिया गया है, ये जो लीफ टाइप बनाया गया है वो बहुत एक अच्छा जो है ना, हाँ वो हाँ ह्यूज लुक भी दे रहा है। ऊपर दो पता नहीं क्या रूफ सी बनी हुई है या टेरेस से बने हुए हैं, वो शायद हो सकते हैं हेलीपैड भी हो सकते हैं। ओके आई डोंट नो भाई मैं वैसे मुझे नहीं पता, मैं वैसे ही कह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं जो बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह बने होते हैं ना, वहाँ पे मोस्टली हेलीपैड की लैंडिंग जो है आपको देखने को मिलती है। बट ये मुझे हेलीपैड की तो नहीं लग रही, बट ये कि ये हाँ चार चांद जरूर लगा रहे हैं इसके इंटीरियर में। और भाई स्पेशली अगर हम स्टार्ट से बात करें जहाँ पर NMACC गोल्डन हरूफ में लिखा गया है, सुनहरे अल्फाज, सुनहरे अल्फाज, सुनहरे हरूफ कह सकते हैं। वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। फिर मुझे जो है ना जो दो जगह है, हालांकि पेंटिंग वाला सेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, लेकिन मुझे जो है ना जो एक फैशन का जो पूरा एक सेक्शन बनाया गया है, ठीक है ना, उसको जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जैसे वहां पर आप देखें बॉलीवुड स्टाइल आपको कपड़े मिलेंगे, आपको जो ऐसे जो हॉलीवुड या इंटरनेशनल लेवल पे जो फैशन आपको देखने को मिलता है, हाँ उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उस तरह के भी आपको देखने को मिलेंगे। एक मुझे वो सेक्शन बहुत अच्छा लगा जिस तरह उन्हें प्रिजर्व किया गया, शीशे लगाकर, ये नहीं कि खाली सीधे सीधे शीशे खड़े करके दीवार के साथ लगा दिया, एक डिफरेंट जगहों पर जो है उन्हें हाँ आपको आर्ट उसमें भी नजर आता है। फिर उसके बाद जो एक बहुत बड़ा आपको वो वैसे तो मैं ओपेरा हाउस ही कहूँगा क्योंकि मोस्टली मैंने जो देखे हुए ओपेरा हाउस इसी तरह के जो है वो होते हैं, तो वो भी मुझे जो है बहुत खूबसूरत जगह लगी है। वेल मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, स्पेशली एक जो फैशन म्यूजियम मैं बोलूँगी कि एक म्यूजियम की तरह उसको जो है वो बनाया गया, वो बहुत ही मुझे फ्यूचरिस्टिक लगा। आई मीन जो उसका एक इंटीरियर स्पेशली ग्लास डिफरेंट स्टाइल के बहुत ही खूबसूरत था। उसके साथ साथ मैं ये भी बात बोलना चाहूँगी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में। और अगर हम इंडियन जितने भी बिजनेसमैन देखते हैं, चाहे हम टाटा इंडस्ट्री को देखें, चाहे हम लोग मतलब अंबानी को देखें, अडानी को देखें, महिंद्रा को देखें, मतलब जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अभी कल्चर को प्रिजर्व करना ये भी मुझे लगता है कि अपने ही लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जो कि इंटरनेशनल लेवल को मीट कर रही है। अभी जहां पर ओपरा हाउस की, जैसे कि काम्या जानी ने भी बीच में डिस्कस किया कि ओपरा वाली एक वाइब आ रही है, लेकिन वो वाली चीज आपको सेम अपने कंट्री में मिल रही है। इट मीन्स कि आप बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि उनके कंट्री में आओ और आकर डिफरेंट जो फंक्शंस है, इवेंट्स हैं, वो कल्चरल इवेंट्स, हाँ एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइज होंगे ऑब्वियसली। और कल्चरली देखो वो कुछ चीज़ों तक सीमित नहीं है, ये एक इतना मैं कहूँगी कि एक बहुत ही मतलब आप ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि पेंटिंग का भी हमने देखा, फिर उसके बाद फैशन का देखा, परफॉर्मेंस का देखा, फिर हमने ऐसे थिएटर्स भी देखे बीच में जहाँ पर आप अपनी जो एक तरह से देखा जाए तो जो नए लोग होंगे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। बेसिकली जो है ना, ये जो चीज़ एक बना दी गई है ना, इसमें बहुत सारे लोगों को जो है ना, नए आर्टिस्ट को जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसे बीच में स्टैंड अप कॉमेडी का भी जो है वो जिक्र किया गया, और भी हाँ छोटे छोटे थिएटर से, उसके अलावा बाकी और चीज़ों का भी जो जिक्र किया गया कि जो परफॉर्मेंसेज होती हैं डिफरेंट, उन्हें भी जो है एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। और वैसे भी इंडिया में हम देखें भाई, परफॉर्मेंसेज तो हमें पहले से देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर अब इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। यानी कि अब बहुत सारे आपको स्टैंड अप कॉमेडियंस और बहुत अच्छे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस जो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, लोगों को जो है वो सेटअप के साथ क्या है, हौसला अफजाई करना कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये क्रिएट करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं भाई। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी उसकी टिकट प्राइस बहुत ही इकोनॉमिकल, जो कि मैंने गलती से ज्यादा बोल दी। हाँ सुन रहा था कि क्या है, क्योंकि वो थोड़ी सी हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं 400 कह रही थी, 4000 कह रहा था, लेकिन आई थिंक 400 इज वेरी रीजनेबल। आप आराम से टिकट खरीद के कोई भी इवेंट जो है वो देख सकते हो। इनफैक्ट जो आप फैशन का देखोगे वो 199 रुपीज में, बिल्कुल ठीक है, चलो 200 रुपए भी लगा लो, 190, 199 या 200 जितना भी है, बहुत मुझे लगता है कि ये रीजनेबल प्राइसेस हैं। क्योंकि जो आप एक उस टाइम पर हम कहेंगे कि उस जगह की एक वाइब और जो एक एक्सपीरियंस होंगे वो टोटली डिफरेंट है। सो मुझे लगता है कि ये कमाल की चीज़ है। और मुझे एक और चीज़ रियलाइज हुई यार कि लाइक इंडियंस जब भी कोई काम करते ना, सीरियसली वो बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। हकीकत है इसमें जैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल के जितने मतलब हॉलीवुड के, अगर आप मान लो कि जो एक्टर्स हैं हम लोगों ने उनको देखा, सो मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पर चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, ऑब्वियसली जो वो यहाँ से वहाँ गए होंगे तो एक नाम जो है वो भी लेकर गए होंगे, और कहाँ कहाँ तक चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचेगी, ये इसी तरीके से एक चेन बनती है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि मुंबई में रहने वाले स्पेशली लोगों के लिए तो आई थिंक ये एक ट्रीट है। तो कौन कौन जो है स्पेशली जो आर्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है यहाँ पर विजिट करने वाला है, ज़रूर बताइए। और अगर विजिट करेंगे तो हमारे साथ पिक्चर जरूर शेयर कर देना। और इसी के साथ हमें इजाज़त, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।